In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. Especially the students who are waiting for my lecture on the topic The Last Leaf by O. Henry. This lecture is prepared for the students of grade 12 from their new course. I hope this lecture is useful for you because I have tried to explain everything in detail. I hope you would like my video. I request you at the same time to press like button, give your kind comments which I read every time and I appreciate it. It encourages me a lot as well. Starting with your lecture with Urdu explanation as well for the students of government colleges and schools. First of all, I have prepared a short summary for you. The Last Leaf by O. Henry, whose original name is William Sidney Porter, born on 11th September 1862 in Greensboro, North Carolina, United States of America. He was an American short story writer, अमेरिका का शॉर्ट स्टोरी राइटर था, whose tales romanticized the commonplace, in particularly the life of ordinary people in New York City. Now, उसने आम लोगों की जिंदगी के बारे में बहुत सी स्टोरीज लिखी. Here is a summary of The Last Leaf written by O. Henry, in which there are two painters, Sue and John Z, who lived together in Greenwich Village, New York City, 1890. 1890 की बात है कि सू एंड जॉन्जी दो लड़कियां थीं. दे वर पेंटर्स. वो इकट्ठी रहती थीं. दे वर यंग हार्ड वर्किंग पेंटर्स. दे वर क्वाइट इंटरेस्टेड इन देयर वर्क. दे वर द मोटिवेटेड पेंटर्स. With winter quickly approaching, John Z gets pneumonia and becomes very ill. जब सर्दी आई तो निमोनिया breaks out in the New York City. उसमें निमोनिया का जो मर्ज है वो फैल गया और उनमें से it struck John Z as well. John Z बहुत ज़्यादा बीमार होगी, उसको निमोनिया हो गया. She thinks she is dying. अब वो बीमार थी, डॉक्टर उसका इलाज भी कर रहा था, but she becomes negative. She started thinking negatively. She starts thinking about death. वो मौत के बारे में सोचना शुरू कर देती है क्योंकि वो सोचती है कि अब वो मरने वाली है. She decides that when the last leaf from the vine growing on the wall outside her window falls, she will die too. अब उसका बेड जो था वो खिड़की के साथ था. उसने अपनी फ्रेंड सू से कहा कि वो खिड़की को खोल दे. जब जॉन्जी खिड़की के वहीं लेटे लेटे, वो बीमार थी, उसके ऊपर नेगेटिव थिंकिंग इतनी ओवर पावर उसके जहन को कर दिया था, वो मनफी तरीके से सोचने लगी, मौत के बारे में सोचने लगी. जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो एक वाइन, एक अंगूर के जो एक बहुत पुराना दरख्त था, उसकी जो ब्रांचेस थी उनमें से एक ब्रांच जो थी वो सामने की दीवार, जो नेबरहुड में एक दीवार थी उसके साथ चिपकी हुई थी, उसके साथ फैली हुई थी. और उसके ऊपर चूंकि विंटर था, ऑटम में पत्ते गिर चुके थे, कुछ थोड़े से पत्ते बाकी रह गए थे. और वो जब देखती है, चूंकि उसके ऊपर नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो कहती है कि अब ये 5 और 6 पत्ते बाकी रह गए हैं इस टहनी के ऊपर, और जैसे जैसे ये गिर जाएंगे और जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसके साथ वो भी मर जाएगी. Behrman, a painter as well, is an old man who lives in the apartment building with John Z and Sue. उन्हीं के साथ एक और अपार्टमेंट में एक बूढ़ा पेंटर रहता है जिसका नाम बेहरमैन है. He hears about what has happened to John Z and decides to help.
एक दिन सू बहरमैन को बताती है कि जॉन्जी बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन बीमारी से भी ज़्यादा उसके ऊपर ये एक सोच हावी हो चुकी है कि वो मरने वाली है। जब वो ऐसे सुनता है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। ही इज़ अ ग्रफ मैन, वो बहुत रफ सा वो इंसान है, very rough and hoarse and harsh. He's a gruff man and no one thinks much about him. तो वो किसी को इतना अट्रैक्ट करता नहीं है, कोई उसके बारे में इतना सोचता नहीं है. He's a common man. He is taken as common person by everyone. He has not worked on his painting in over 40 years. 40 साल से वो पेंटिंग कर रहा है, लेकिन उसने इतनी इंटरेस्ट से पेंटिंग नहीं की, उसने इतना उसको सीरियस नहीं लिया. He's been dying to create a masterpiece. Although he had a wish, उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसा मास्टरपीस बना दे पेंटिंग का जो सारी जिंदगी वो अमर हो जाए, जिंदगी में वो रहती दुनिया तक लोग उसको वो पेंटिंग देख के उसको याद करें. बट ही हैज नेवर बीन सक्सेसफुल. वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ इस बात में. He paints the vine with just one leaf on it outside of Jonesy's window and she sees the leaf is still there and never falls. अब जॉन्जी इस बात पे वो होती है कि हर रोज एक एक पत्ता गिर रहा है, अब सिर्फ एक पत्ता रह गया है और जिस दिन वो एक पत्ता गिरेगा उसके साथ ही जॉन्जी की भी डेथ हो जाएगी. वो रात बहुत तूफानी बारिश और हवा की रात है और डेफिनेटली वो एक पत्ता उसने हर हाल में गिरना ही था. और जॉन्जी यही सोच के सोती है कि वो सुबह उठ के देखेगी अगर वो पत्ता नहीं होगा तो वो भी मर जाएगी. इसका मतलब है इट इज़ द टाइम ऑफ हर डेथ टू. उस तूफानी रात में जब वो उसके बाद सुबह वो उठती है तो इट इज टू हर सरप्राइज दैट शी सीज दैट द लीफ इज स्टिल देयर. वो देखती है कि इतनी तूफानी रात, इतनी बारिश और हवाओं के बाद भी वो पत्ता अपनी जगह पे मौजूद है. एंड इट इनकरेजेस, दिस थिंग इनकरेजेस हर अ लॉट. वो कहती है कि मैं कितनी बुरी हूं, मैं हमेशा डेथ के बारे में सोचती हूँ, लेकिन किसी ने इस पत्ते को यहीं पे किसी ने इस पत्ते को यहीं रखा है. यानी वो नेचर की बात करती है कि नेचरली ये पत्ता अपनी जगह पे मौजूद है. ये मेरे लिए एक सबक है कि आई शुड नॉट थिंक अबाउट डेथ ओनली, आई मस्ट थिंक अबाउट सर्वाइवल एज वेल. हमें तो सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए. मैं कितनी नेगेटिव माइंडेड हूं कि मैं सिर्फ मौत के बारे में सोच रही हूं जबकि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है. दिस लीफ शोज दैट आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ. ये आखिरी पत्ता तूफान के बाद भी नहीं गिरा, तो इसका मतलब है कि मैं भी जिंदा रहूंगी, मैं भी इस बीमारी से नहीं मरने वाली. आई विल रिकवर माई सेल्फ. उसको इतनी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है उस आखिरी पत्ते को देख के कि तूफान के बाद भी ये नहीं गिर पाया. Now she decides that I will live the life to the full. वो उठ के बैठ जाती है. वो कहती है कि मैं, और अपनी फ्रेंड सू से कहती है कि मुझे मिरर ला के दो, मैं उसमें देखूं कि मेरे साथ क्या हुआ. यानी अब वो she revives all those disappointed things and all that. वो उसकी जिंदगी जो है वो she revives it. वो मिरर मंगवाती है, फिर वो कहती है कि वो अपनी फ्रेंड को देखेगी कि वो कैसे कुकिंग करती है, और फिर वो साथ में ये फैसला करती है अब वो प्रॉपरली अपनी डाइट भी लेगी. बट व्हाट हैपेंड? बहरमैन कैचेस निमोनिया एंड डाइज शॉर्टली आफ्टर फिनिशिंग हिज मास्टरपीस. बाद में पता चलता है कि उसको उसकी फ्रेंड जॉन्जी बताती है कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि बहरमैन को निमोनिया हो गया था और वो सिर्फ हार्डली 2 दिन जिंदा रहा और उसके बाद वो मर गया क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था, वो सरवाइव नहीं कर सका. और उसको कैसे, हाउ डिड ही कैच निमोनिया? निमोनिया उसको कैसे हुआ? क्योंकि वो उस रात, जिस रात तूफानी हवा और शदीद बारिश थी, उसने उस तूफानी और ठंडी हवा में, ठंडी रात में बैठ के बाहर जाहिर है वो लास्ट लीफ तो गिर गया, वो तो कमजोर था, वो तो गिर चुका इतनी तूफान में, लेकिन बहरमैन ने ये सोचा कि सुबह जॉन्जी सुबह उठेगी और वो देखेगी कि पत्ता जो है वो तो गिर चुका है, और वो भी हो सकता है इसी ख्याल से वो भी मर जाए कि ये उसकी डेथ का टाइम है. कि इंसान जो सोचता है वही होता है, जो वो अपने जहन पे हावी, अगर नेगेटिव थिंकिंग करता है तो एवरीथिंग नेगेटिव हैपन्स इन हर लाइफ. अगर वो पॉजिटिव सोचता है तो एवरीथिंग ही सीज पॉजिटिविटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ.
चूंकि जॉन्जी ने ये फैसला कर लिया था कि लास्ट लीफ के बाद वो भी मर जाएगी उसके गिरने के साथ ही, तो हो सकता है वो इस चीज को दिल पे ले ले, हो सकता है ये चीज उसकी जान ले ले, उसको हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो वो बेचारा सर्दी में बैठ के उसने इतनी रियल पेंटिंग बनाने की, उसने वही लास्ट पत्ता जो है वो वहां पे दीवार पे उस बेल के इर्द गिर्द इस खूबसूरती से, इस इतनी परफेक्शन से बनाया कि ऐसे लगता था कि वही लीफ है, वो लीफ वहां से गिरा नहीं है, ये ओरिजिनल लीफ वहीं पे मौजूद है। सो इट बिकेम, ही सैक्रिफाइस्ड हिज ओन लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ जॉन्जी। जॉन्जी की जिंदगी बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने इतनी ठंडी रात में बैठ के वो पत्ता वहां पे पेंट कर दिया ताकि सुबह उठ के जब जॉन्जी देखे तो वो कहे कि ये पत्ता तो अपनी जगह पे मौजूद है और फिर उसको सर्वाइवल की कोई उम्मीद हो। और ऐसा ही हुआ, उसको तो उम्मीद हो गई सर्वाइवल की, वो तो अब जिंदा रहना चाहती थी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कितना नेगेटिवली सोच रही थी। पत्ता तो अब भी वहां मौजूद है। इट मीन्स के मुझे भी इन बीमारियों का मुकाबला, जिस तरह इस पत्ते ने तूफान का मुकाबला किया और अपनी जगह पे कायम रहा, मुझे भी अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, मुझे इसका मुकाबला करना चाहिए, मुझे उठ के बैठना चाहिए। वो उठ के बैठती है, वो कहती है कि मैं प्रॉपर डाइट लूंगी, मैं अपनी फ्रेंड को देखूंगी जो किचन में क्या कुकिंग कर रही है। सो इंस्पायरेशन टू लिव रिवाइव्स इन जॉन्जी। लेकिन उसको पता चला बाद में कि ये क्या हुआ था कि बहरमैन ने ये पेंटिंग बनाई थी कि ताकि जॉन्जी देखे कि पत्ता अपनी जगह पे मौजूद है। वो उसने अपनी जान दे दी और जॉन्जी की जिंदगी बचा ली। लेकिन इसका रिवॉर्ड भी बहरमैन को इस सूरत में मिला कि वो सारी जिंदगी ख्वाहिश करता था कि वो एक मास्टर पेंटिंग बनाए, लेकिन ये इतनी परफेक्ट पेंटिंग बनी। उसने ह्यूमन सिंपथी में बहुत ज़्यादा डूब के वो पेंटिंग बनाई थी, तो वो उसमें इतनी परफेक्शन थी कि इट बिकेम अ मास्टरपीस। ये लास्ट लीफ की जो पेंटिंग थी ये मास्टरपीस बन गई। इट फुलफिल्ड द डिजायर ऑफ बहरमैन एज वेल। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। आई होप कि स्टोरी आपको समझ आ गई है। नाउ लेट अस गो टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन। नाउ starting with the first paragraph, in a small part of the city west of Washington Square, the streets have gone wild. Now he says that when with the expansion of population, the streets, there were so many streets, there were so many places in the city. They turn in different directions. One street leads to another street. They are turning and bending in different directions now. There was a network of streets. कितना ज्यादा एक इन गलियों का जाल फैला हुआ था। They turn in different directions. वो डिफरेंट सिमतों में मुड़ रही थी। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस लाइक प्लेसेस। और कहाँ जाके ये ख़त्म होती थी? छोटी छोटी जगहों पे, जहाँ पे छोटे मोटे घर बने हुए थे। वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ वन और टू टाइम्स। ऐसा भी राइटर कहता है, ओ हेनरी सेज के एक गली जो है वो अब खुद को ही एक दफा या दो दफा वो खुद को ही क्रॉस कर रही है। Now it must be, it has so many angles and curves, you know. One street crosses itself a time or two. The street ran in one direction for a bit. यानी इसका मतलब ये कैसे क्रॉस करती है? वो थोड़ा सा आगे जाती है, एक गली एक सिमत में आगे जाती है, वहां से लिटिल कर्व लेती है, वहां से थोड़ा सा मोड़ आता है, एंड इन अ सर्कुलर पैटर्न क्रॉसेस इटसेल्फ। मोड़ के ये अपने ही अंदर दूसरी साइड से ये उसी गली में दोबारा दाखिल हो जाती है। So that's why he says that it crosses, one street crosses once or twice itself. Now here the writer is exaggerating in order to make fun of bad urban planning of streets and roads. यहाँ पे वो थोड़ा सा एग्जेजरेट कर रहा है। इट मे नॉट हैपन बट इट मे हैपन एट द सेम टाइम कि अर्बनाइजेशन, वो देख रहे हैं कि शहरों में कितनी गलियां हैं और उन गलियों में जब इंसान दाखिल होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है वेयर टू गो, वेयर डज दिस स्ट्रीट लीड टू। ये गली हमें कहाँ लेके जा रही है?
वो कहते हैं कि समटाइम्स तो बंदा जब एंटर होता था इस स्ट्रीट में तो वो वापस उसी स्ट्रीट में वापस आ जाता था, एक कर्व लेके, एक मोड़ मुड़ के वो दोबारा उसी स्ट्रीट में आ गया. Now he says that a painter once discovered something possible and valuable about this street. वो कहता है कि एक बंदे ने एक अच्छी ऑब्जर्वेशन, एक पेंटर की बात है, वो कहता है कि क्योंकि राइटर जो है वो एक पेंटर की एग्जाम्पल ले रहा है. वो कहता है कि क्योंकि ये विलेज जो है, ये जो गांव है जिसकी ग्रीनविच विलेज की बात हो रही है, इसकी बात कर रहा है. वो कहते हैं कि इसमें ये बहुत मशहूर था अपने आर्ट के, फन, इसको लाइवली आर्ट कॉलोनी कहते थे. यहाँ पे बहुत सारे पेंटर्स आके आबाद थे, बहुत सारे आर्टिस्ट्स यहाँ पे आबाद थे इन गलियों में. तो वो कहते हैं कि एक पेंटर जो है जब वो इस गली में आता था, सपोज अ पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल्स फॉर विच ही हैड नॉट पेड. एक पेंटर है, उसने यहाँ आके किसी को पेंटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है और उसके भी पैसे बकाया रहते हैं. वो अपने पैसे कलेक्ट करने के लिए अगर इन गलियों में आ जाता है, उन लोगों का घर तलाश करते जहां से उसको पेमेंट मिलनी है. सपोज ही हैड नो मनी, सपोज अ मैन केम टू गेट द मनी, वो आया अपना पैसा लेने के लिए आया है. द मैन माइट वॉक डाउन दैट स्ट्रीट, वो उस गली में आएगा, वहां पे वॉक करेगा, उस गली में आगे जाएगा, एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक. और जैसे ही वो वहां से मोड़ मुड़ेगा तो वो अपने आप ही, अपने खुद को ही वो मिलता है दोबारा, क्योंकि वो गली खुद ही क्रॉस, अपने आप को ही क्रॉस कर रही है विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट. और उसको एक पेनी भी नहीं मिलती, एक पैसा भी उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसे गलियों में जाके वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे रास्ते ही नहीं नजर आते. So the writer exaggerates here. He says that he meets himself only and no other person from which he has to receive money or he has to take his payment. और वो बंदे उसको मिलते ही नहीं है जिनसे उसने पेमेंट लेनी होती है, क्योंकि गलियां इतनी क्रिस क्रॉस हैं ये स्ट्रीट्स के, बंदा उन गलियों में जाके कंफ्यूज हो जाता है. आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू. नाउ in paragraph 2, this part of the city is called Greenwich Village. Now, and to old Greenwich Village, the painters soon came. यहाँ पे painters आए. Here they found rooms they like with good light and at a low cost especially. यहाँ पे ग्रीनविच विलेज में वो पेंटर्स इसलिए आते थे कि उनको रहने की जगह मिलती थी, कुछ अच्छी रोशनी थी उन जगहों पे, और दूसरी बात यह है कि ये कम पेमेंट, उनको इन जगहों का रेंट कम अदा करना होता था, इस वजह से इस जगह आके वो आबाद हो गए थे. Now, New York City's Greenwich Village, it must come on the screen, bordered roughly by 14th Street on the north, Hudson River on the west, Broadway on the east, and by Houston Street on the south, has long been a fertile spawning ground for the artists. ये artists, especially ये जो Greenwich Village था, it has been a fertile spawning ground for the artists, और artists के लिए it was something new and to grow and to start something suddenly. So New York University and its art galleries have played key roles in its illustrious history. By the 1850s, the village was a lively art colony, attracting many art schools, private galleries and clubs, as well as artists' studios. So here the artists used to come for starting something new for their paintings at low rent of the rooms as well. Now paragraph number 3. Sue and Johnsy lived at the top of a building with 3 floors. One of these young women came from Maine, the other from California. Maine is a state in New England region of the United States. A state in the New England region of the United States. And we have been introduced in this paragraph two ladies, Sue and Johnsy. One of these young women came from Maine, the other from California. Johnsy came from California and Sue came from Maine. They had met at a restaurant on 8th Street. There they discovered that they liked the same kind of art, the same kind of food, and the same kind of clothes. So they decided to live and work together.
ये दोनों सू एंड जॉन्जी एक स्ट्रीट में रेस्टोरेंट था जिसमें ये दोनों थी, ये एक दूसरे से दे हैपन टू मीट ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मिली। जब एक दूसरे के इंटरेस्ट की बात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, तो इन्हें पता चला कि उनका इंटरेस्ट तो एक ही चीज़ में है, दैट इज़ पेंटिंग। उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स भी एक ही हैं। उनके जब उन्होंने फूड ऑर्डर किया रेस्टोरेंट में तो उन्होंने दे वर सरप्राइज्ड कि उनकी लाइक्स भी, उनकी चॉइसेस भी एक ही हैं एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े, उनके कलर्स, उनकी चॉइसेस इस मामले में भी बिल्कुल एक हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इकट्ठी रहेंगी और इकट्ठे वो काम करेंगी क्योंकि उनके इंटरेस्ट एक हैं, उनकी चॉइसेस एक हैं, तो उनको चाहिए कि वो मिल के काम करें। दैट वॉज इन द स्प्रिंग। Now see, toward winter, a cold stranger entered Greenwich village. A cold stranger. Pneumonia is a disease which has been personified here in this paragraph as a cold stranger. एक बहुत ही सर्द महर सा अजनबी इस इलाके में दाखिल हो गया। No one could see him. कोई इसको देख तो नहीं सकता था। He walked around touching one person here and another there with his icy fingers. वो दाखिल हुआ, कोई उसको देख नहीं सकता था, लेकिन वो अपने आइसी जो हाथ थे, बहुत ही बर्फीले हाथ जो थे, वो हर एक को लगा रहा था, हर एक को टच कर रहा था। He was a bad sickness. वो कौन था? He was no other but a sickness. वो एक बीमारी थी। Doctors called him pneumonia. डॉक्टर उसको निमोनिया की बीमारी कहते थे। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी ही हरीड टचिंग मैनी पीपल। शहर के मशरक में वो जल्दी से गुजरा, बहुत से लोगों को वो टच करते हुए गुजरा। बट इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीनविच विलेज, लेकिन ग्रीनविच विलेज की जो तंग गलियां थीं, ही डिड नॉट मूव सो क्विकली। वो वहां पे ज्यादा तेजी से ना गुजरा, बल्कि लोगों को आराम आराम से अफेक्ट करता गया। बहुत डिटेल से उसने लोगों को अफेक्ट किया। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन. A nice old gentleman would not hurt a weak little woman from California. कहते कि ये जो मिस्टर निमोनिया है, as pneumonia has been personified and is called as मिस्टर निमोनिया, वो कहते कि वो एक कोई अच्छा इंसान नहीं था, क्योंकि जो एक अच्छा बूढ़ा इंसान होता है वो तो कमज़ोर लोगों को कभी भी हिट नहीं करता, कमज़ोर लोगों पे असर नहीं डालता। स्पेशली एक बहुत ही कमज़ोर औरत जो कैलिफोर्निया से बिलोंग करती है। अब आप देखें, आपने उस पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, यू हैव ऑलरेडी रेड कि कैलिफोर्निया से जॉन्जी जो है वो शी हेल्स फ्रॉम कैलिफोर्निया। इट मीन्स दैट जॉन्जी हैज़ बीन अफेक्टेड बाय निमोनिया, बट मिस्टर निमोनिया टच्ड जॉन्जी विद हिज कोल्ड फिंगर्स। उसने अपने ठंडे हाथ जॉन्जी को भी लगा दिए। शी ले ऑन हर बेड ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग एंड शी लुक थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू हर्स। अब वो बेड पे लेट गई। जाहिर बात है वो बहुत बीमार थी, उसे बहुत बुखार था, और वो थ्रू आउट वो सारा दिन अपनी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। और कहाँ देखती थी? सामने एक दीवार थी, सिर्फ सामने वाले घर की एक दीवार सिर्फ थी। दीवार के अंदर कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ खाली दीवार थी, वो उसको देखती रहती थी। One morning the busy doctor spoke to Sue alone in the hall where Johnsy could not hear. एक सुबह डॉक्टर आया जब जॉन्जी को चेक करने के लिए, तो उसने सू को अलग से बुलाया और उससे बात की जहाँ पे जॉन्जी को उसकी आवाज़ सुनाई ना दी। She has a very small chance, he said. उसने कहा कि इसके पास बहुत कम मौका है। She has a chance if she wants to live. लेकिन डॉक्टर ने बड़ी मीनिंगफुल बात की। उसने कहा as far as this disease is concerned, अगर जहाँ तक आप इस बीमारी को देखेंगे तो जॉन्जी has a very little chance. जॉन्जी के पास बहुत कम मौका है कि बीमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन she has a chance. एट द सेम टाइम उसके पास मौका है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। हाउ? इफ शी वॉन्ट्स टू लिव, अगर वो खुद जिंदा रहना चाहती है। इट मीन्स दैट इफ शी हैज़ अ विल पावर टू लिव, अगर उसके अंदर कुव्वत इरादी है जिंदा रहने के लिए, तो वो जिंदा भी रह सकती है, उसके पास चांस है।
इफ पीपल डोंट वॉन्ट टू लिव, अगर लोग खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहते, आई कांट डू मच फॉर देम, मैं तो उनके लिए फिर कुछ नहीं कर सकता. डॉक्टर इज हेल्पलेस व्हेन अ पेशेंट वांट्स टू डाई. जब मरीज मरना चाहता है तो फिर डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर उसकी हेल्प नहीं कर सकता. योर लिटिल लेडी हैज डिसाइडेड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. तुम्हारी ये जो यंग लेडी है, वो जॉन्जी के बारे में बात करता है कि उसने ये फैसला कर लिया है कि वो ठीक नहीं होगी. उसने अपना माइंड बना लिया है. शी हैज मेड अप हर माइंड. उसने अपना माइंड बना लिया है कि अभी वो ठीक नहीं होगी. इज देयर समथिंग दैट इज ट्रबलिंग हर? क्या कोई कोई ऐसी परेशानी है जो उसको परेशान कर रही है, जो उसको डिस्टर्ब किए हुए है? She always wanted to go to Italy and paint a picture of the Bay of Naples, said Sue. Sue कहती है हाँ, उसकी ख्वाहिश है कि वो इटली जाए और बे ऑफ नेपल्स यानी इटली का जो इनलेट है, तो वो उसकी एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाए. ये इसकी ख्वाहिश है. पेंट? नॉट पेंट. इज देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट अ मैन? वो कहते हैं कि क्या वो सिर्फ पेंटिंग के लिए परेशान है? क्या पेंटिंग से भी ज्यादा कोई चीज इस काबिल है कि जिसके बारे में परेशान हुआ जाए? अ मैन, डॉक्टर हिमसेल्फ सेड. पहले वो क्वेश्चन करता है कि क्या वो सिर्फ एक पेंटिंग के लिए परेशान है? क्या पेंटिंग से ज्यादा कोई भी एक चीज इस काबिल नहीं है जिसके लिए वो परेशान हो? अ मैन, इंसान के बारे में. इट इज वीकनेस सेड अ मैन सेड सू. सू कहती क्या एक इंसान? इज अ मैन वर्थ? नो डॉक्टर, देयर इज नॉट अ मैन. तो वो कहती है कि नहीं डॉक्टर, क्या इंसान इस काबिल है कि उसके बारे में सोचा जाए? देयर इज नॉट अ मैन. नहीं, वो किसी इंसान के बारे में नहीं सोच रही. इट इज वीकनेस सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा यही तो कमजोरी है. आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू. मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा. जितना मैं जानता हूं इस बीमारी के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, वो तो मैं सब करूंगा. बट वेन अ सिक पर्सन बिगिंस टू फील दैट इज गोइंग टू डाई, लेकिन एक बीमार बंदा ये सोचना शुरू कर देता है, ये महसूस करना शुरू कर दे कि वो मरने वाला है, हाफ माई वर्क इज यूजलेस. मेरा आधा काम तो बेकार जाएगा, उसका कोई फायदा भी नहीं है, उस ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है. टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स. वो कहती है जाओ, डॉक्टर उसे मशवरा देता है सू को, जाओ उसके बारे में उससे सर्दियों की नई क्लॉथ्स की वैरायटी के बारे में बात करो. इफ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर वो अपने मुस्तकबिल में दिलचस्पी रखती है, हर चांसेस वुड बी बेटर. फिर उसके जो चांसेस हैं ठीक होने के, जो उसका अपॉर्चुनिटी है वो बेहतर हो जाएगी. इफ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर वो अपनी जिंदगी, अपने मुस्तकबिल के बारे में दिलचस्पी रखती है तो फिर वो ठीक हो जाएगी, उसको चांसेस मिल जाएंगे जिंदा रहने के, ठीक होने के. लेकिन अगर वो खुद मरना चाहती है तो डॉक्टर इज हेल्पलेस, क्वाइट हेल्पलेस. हाफ ऑफ हिज वर्क इज यूजलेस. आधा काम तो उसका बेकार जाएगा. आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, सू वेंट इनटू द वर्क रूम टू क्राई. जब डॉक्टर चला गया तो सू अपने कमरे में गई जहां वो पेंटिंग्स बनाया करती थी, तो वहां पे उसने रोना शुरू कर दिया. Then she walked into Johnsie's room. She carried some of her painting materials and she was singing. उसने फिर अपनी पेंटिंग की चीजें उठाई, जॉन्सी के कमरे में गई और गुनगुनाने लगी. जॉन्सी ले देयर वेरी थिन एंड वेरी क्वाइट. लेकिन जॉन्सी वहां पे लेटी हुई थी, बहुत कमजोर पड़ गई थी, बहुत खामोश हो गई थी. हर फेस वॉज टर्न टूवर्ड द विंडो. उसका जो फेस था वो खिड़की की तरफ मुड़ा हुआ था. सू स्टॉप्ड सिंगिंग, थिंकिंग दैट जॉन्सी वॉज अस्लीप. सू ने गाना छोड़ दिया, वो रुक गई क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद जॉन्सी सोई हुई थी. सू बिगेन टू वर्क. एज शी वर्क शी हर्ड अ लो साउंड अगेन एंड अगेन. वो खामोशी से अपना काम करने लगी, लेकिन उसे अचानक आवाज आई कि उसने कोई हल्की सी आवाज में बार बार कुछ कह रहा है. शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड. वो फौरन जॉन्सी के बेड के किनारे गई. जॉन्सीज आईज वर ओपन वाइड. उसने देखा कि जॉन्सी की आंखें तो पूरी की पूरी खुली हुई हैं. शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैक. वो तो खिड़की से बाहर देख रही है और को बार बार किसी चीज को गिन रही है. 12, she said, and a little later 11, and then 10, and 9, and then
8 and 7 almost together. यानी उसने पहले कहा 12, थोड़ी देर बाद उसने कहा अब now 11, then 10, 9, 8, 7. Sue looked out the window. Sue ने कहा कि क्या चीज गिन रही है और count down, it is count down. What was there to count? ऐसी क्या चीज गिन रही है? There was only the side wall of the next house. सामने तो सिर्फ दूसरे घर की दीवार है, a short distance away, जो थोड़े ही फासले पर है. The wall had no window. उस दीवार में कोई खिड़की नहीं थी. An old tree grew against the wall. उस दीवार के साथ एक बहुत पुराना दरख्त उगा हुआ था. The cold breath of winter had already touched it. और सर्दी की जो सर्द लहर है उसने इस जाहिरी बात है इस दरख्त को भी अफेक्ट किया था, इस पे भी असर डाला था. ऑलमोस्ट ऑल इट्स लीव्स हैड फॉलन फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस. इसके तकरीबन तमाम पत्ते जो हैं वो इसकी गहरी जो ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, उनसे गिर चुके थे. व्हाट इज इट डियर? आस्क्ड सू. सू ने पूछा कि ये क्या है? 6, said Johnsy in a voice little lower, still lower. जॉन्सी की आवाज कुछ और कम हो गई. उसने कहा अब 6 हैं. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. ये तो अब बहुत तेजी से गिर रहे हैं, ये पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100. कहती है 3 दिन पहले जब मैंने देखा तो तकरीबन 100 पत्ता था. It hurt my head to count them. मेरा तो सर दुखने लग गया इनको काउंट करके. But now it's easy. यानी जब वहाँ बहुत ज्यादा पत्ते थे तो मैंने उनको जब मैं काउंट करने लगी तो मेरे सर में दर्द हो गया क्योंकि बहुत सारे पत्ते थे. लेकिन अब तो इनको काउंट करना बहुत आसान हो गया है. देयर गोज अनदर वन. वो देखो एक और पत्ता गिर गया. देयर आर ओनली 5 नाउ. अब सिर्फ 5 पत्ते रह गए हैं. 5? व्हाट डियर? टेल योर सू. और सू कहती है कि 5 क्या मतलब? तुम अपनी फ्रेंड सू को बताओ कि क्या मतलब है तुम्हारा. लीव्स ऑन द ट्री. वो कहती है उस दरख्त पे जो पत्ते हैं. When the last one falls, I must go too. जब आखिरी पत्ता रह जाएगा और वो भी गिर जाएगा तो फिर इसका मतलब है उसी दिन मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी. Because these falling leaves, they are the symbol of death. I have known that for 3 days. मैं तो इनको 3 दिनों से देख रही हूँ. Didn't the doctor tell you? क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरी मौत अब करीब है? Oh, I never heard of such a thing, said Sue. और सू कहती है कि मैंने तो इस तरह की कोई चीज नहीं सुनी हुई. It doesn't have any sense in it. और इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है. जो बात तुम कर रही हो इसमें मुझे तो कोई अक्लमंदी की बात नजर नहीं आ रही. It doesn't make sense. What does an old tree have to do with you? इस बूढ़े दरख्त का तुम्हारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? उसके पत्ते तो हर साल गिरते हैं. और विद योर गेटिंग वेल, या तुम्हारे ठीक होने से इसका क्या ताल्लुक है? एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच. और तुम्हें तो इस दरख्त से बहुत प्यार था. डोंट बी अ लिटिल फूल. बेवकूफ मत बनो. द डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस फॉर, और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे ठीक होने के, योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल, तुम्हारे ठीक होने के चांसेस हैं. He told me this morning. उसने आज ही सुबह मुझे बताया. He said you had a very good chances. तुम्हारे तो बहुत अच्छे जिंदा रहने के लिए तुम्हें तो अभी बहुत अच्छे चांसेस हैं. Try to eat a little now. सिर्फ तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है. And then I'll go back to work. अभी कुछ खाने की कोशिश करो, फिर मैं जाऊँ अपना काम करूँ. And then I can sell my picture and then I can buy something more for you. फिर मैं अपनी ये पेंटिंग बेचूंगी, फिर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं और तुम्हारे लिए खाने पीने की चीज़ें लाऊंगी to make you strong. तुम्हें मजबूत बनाने के लिए. You don't have to buy anything for me, said Johnsy. अब जॉन्जी इतनी जो है वो she has lost her heart, इतनी उम्मीद छोड़ चुकी है कि वो कहती है नहीं अब तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदो. She still looked out the window. अभी भी वो बाहर ही देख रही थी. There goes another. वो देखो एक और पत्ता गिर गया. No, I don't want anything to eat. बस मैं अब कुछ नहीं खाना चाहती. Now there are 4. अब 4 पत्ते रह गए हैं. I want to see the last one fall before night. मैं देखना चाहती हूँ कि इस रात से पहले एक और पत्ता भी गिर जाए. Then I'll go too. फिर मैं भी मर जाऊंगी. Johnsy dear, said Sue, will you promise me to close your eyes and keep them closed? वो कहती क्या तुम मुझसे वादा करोगी, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी आंखें बंद करोगी और ये जो उनको बंद रखोगी, तुम इन पत्तों को मजीद नहीं देखोगी. Will you promise not to look out the window until I finish working?
मुझसे वादा करो कि जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, क्योंकि मैंने सुबह तक इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट चाहिए। आई कांट कवर द विंडो, अब मैं ये खिड़की बंद नहीं कर सकती। वो कहती है मैं ये खिड़की बंद कर देती ताकि तुम बाहर ना देख सकती, लेकिन चूंकि मुझे लाइट चाहिए अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए तो मैं ये खिड़की बंद नहीं कर सकूंगी। लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम अपनी आंखें बंद करोगी और उस वक्त तक नहीं खोलोगी जब तक मेरी पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी। Couldn't you work in the other room? asked Johnsy coldly. जॉन्सी ने कुछ थोड़ा सा सख्ती से कहा कि क्या तुम दूसरे रूम में जाके अपना काम नहीं कंप्लीट कर सकती? आई वुड रादर बी हियर बाय यू, सेड सू। सू ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू लुक एट दोज लीव्स, मैं नहीं चाहती कि तुम उन पत्तों को देखो। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश, सेड जॉन्सी। फिर जॉन्सी ने कहा ठीक है, मुझे उसी जल्दी बताओ, जैसी तुमने पिक्चर खत्म की मुझे फौरन बताना। शी क्लोज्ड हर आईज एंड ले वाइट एंड स्टिल। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका जो कॉम्प्लेक्शन था बिल्कुल वाइट हो गया था, बिल्कुल स्टिल होके लेटी हुई थी, क्योंकि उसकी नेगेटिव फीलिंग्स और उसकी ये फीलिंग कि वो मरने वाली है उस पर हावी हो चुकी थी। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, कहती है क्योंकि मैं आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई हैव डन इनफ वेटिंग, मैंने पहले ही बहुत इंतजार कर लिया है। आई हैव डन इनफ इनफ थिंकिंग, मैंने बहुत सोच लिया है। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग डाउन डाउन लाइक वन ऑफ दोज लीव्स, मैं भी उन्हीं पत्तों की तरह अब सेलिंग करते हुए नीचे जमीन पे गिरना चाहती हूँ। मीन्स कि मैं भी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मरना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप, सेड सू। सू ने कहा तुम सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बहरमैन टू कम अप हियर, मैं बहरमैन को बुलाती हूँ कि वो यहाँ आ जाए। आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर, क्योंकि मैंने अपनी इस पेंटिंग में, इस पिक्चर में एक बंदे की पेंटिंग भी बनानी है। एंड आई मेक हिम लुक लाइक बहरमैन, और चूंकि मुझे ऐसे बंदे की बनानी है जो बहरमैन की तरह दिखता हो, सो मुझे उसी को बुलाना है, उसको सामने बिठाती हूँ और उसकी पेंटिंग बनाती हूँ। आई वोंट बी गॉन अ मिनट, डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, कहती मैं 1 मिनट में वापस आऊंगी और तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। ओल्ड बहरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस, जो उनके जहाँ वो दोनों जिस बिल्डिंग में रहती थी उसके फर्स्ट फ्लोर में वो पेंटर रहता था जिसका नाम बहरमैन था। वो एक बूढ़ा आदमी था। ही वॉज पास्ट 60 साल की उम्र से वो आगे गुजर चुका था। ही हैड नो सक्सेस एज अ पेंटर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई थी सारी जिंदगी में। फॉर 40 years ही हैड पेंटेड, 40 साल से वो पेंटिंग्स कर रहा था विदाउट एवर पेंटिंग अ गुड पिक्चर, और कोई एक अच्छी तस्वीर उसने नहीं बनाई थी। ही हैड ऑलवेज टॉक्ड ऑफ पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर, और हमेशा वो इस ख्वाहिश का इजहार करता था कि वो एक बहुत अच्छी सी ग्रेट पेंटिंग बनाए एंड अ मास्टर पीस, और जो कि उसका मास्टर पीस बन जाए। बट ही नेवर येट स्टार्टेड इट, लेकिन अभी तक तो उसने इस पे कोई काम शुरू नहीं किया था। ही गॉट अ लिटिल मनी बाय लेटिंग अदर्स पेंट पिक्चर्स ऑफ हिम, उसने तो कुछ पैसा, बस बहुत कम ही पैसा कमाया था, लेकिन उन लोगों से जो लोग उसकी पिक्चर बनाना चाहते थे। लोग अक्सर उसकी पेंटिंग बनाते थे जो दूसरे पेंटर्स होते थे, तो इसके लिए वो छोटी मोटी पेमेंट बहरमैन को दे दिया करते थे। ही स्टिल टॉक ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, फिर भी वो अब तक अपने मास्टरपीस के बारे में ही बात करता था। एंड ही बिलीव दैट इट वॉज हिज स्पेशल ड्यूटी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प सू एंड जॉन्जी, और वो उसे इस बात का यकीन था कि वो सू एंड जॉन्जी की मदद करने के लिए कोई खास, यानी वो कुछ ना कुछ अपना हक अदा करेगा। सू फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम, सू ने उसको उसके अंधेरे कमरे में देखा। शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्जी एंड द लीव्स ऑन द वाइन, सबसे पहले वो तो बहरमैन को बताती है कि जॉन्जी बीमार है और उसकी खास तौर पे उसकी फीलिंग्स क्या हैं। वो बाहर एक दरख्त को देख रही है, उसके पत्तों को देख रही है। शी सेड दैट शी वाज अफ्रेड दैट जॉन्जी वुड इंडीड सेल डाउन, वो ये भी बताती है बहरमैन को कि उसे यही डर है कि कहीं जॉन्जी भी डाउन डाउन लाइक द लीफ, कहीं पत्ते की तरह वो भी आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ना खो दे। हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वॉज ग्रोइंग वीकर, जिंदगी के बारे में जो उसकी राय है और उसकी जो जिंदगी हासिल करने का जो उसका विल पावर है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। ओल्ड बहरमैन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया, लेकिन ओल्ड बहरमैन को ये बात पसंद ना आई जॉन्जी की। वो एकदम से चिल्लाया, उसने कहा कि ये व्हाट, ही क्राइड, आर देयर सच फूल्स, वो कहते ये क्या वो सोच रही है, क्या ऐसे बेवकूफ़ भी दुनिया में मौजूद होते हैं। डू पीपल डाई बिकॉज लीव्स ड्रॉप ऑफ अ ट्री, क्या पत्तों के गिरने के साथ साथ लोग मर जाते हैं।
आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच अ थिंग, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुन रखी. नो, आई विल नॉट कम अप एंड सिट वाइल यू मेक अ पिक्चर ऑफ मी. नहीं, मैं नहीं आऊंगा और नहीं बैठूंगा जब तुम मेरी पिक्चर बनाओगी. वाई डू यू अलाउ हर टू थिंक सच अ थिंग. तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की? तुमने उसे कहती कि तुम इस तरह की बातें मत सोचो. दैट पुअर लिटिल जॉन्सी, वो बेचारी छोटी जॉन्सी, शी इज वेरी सिक एंड वीक, सेड सू. सू ने कहा वो तो बहुत बीमार पड़ गई है, बहुत कमजोर हो गई है. द सिकनेस हैज पुट दीज स्ट्रेंज आइडियाज इन टू हर माइंड. इस बीमारी ने ये अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात उसके जहन में डाल दिए हैं. मिस्टर बहरमैन, इफ यू वोंट कम यू वोंट. अगर आप नहीं आएंगे तो ना आए. बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस. मैं फिर यही है कि आप इतने अच्छे इंसान नहीं हैं. दिस इज लाइक अ वुमन, शाउटेड बहरमैन. बहरमैन कहता है औरतें बस ऐसा ही कहती हैं. हु सेड आई विल नॉट कम. किसने कहा है कि मैं नहीं आऊंगा? गो, आई कम विद यू. जाओ, मैं आता हूं तुम्हारे साथ. फॉर हाफ एन आवर आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई विल कम. पिछले आधे घंटे से मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि मैं आऊंगा. गॉड, दिस इज नॉट एनी प्लेस फॉर समवन सो गुड एज जॉन्सी टू लाई सिक. ये वो जगह नहीं है. दिस इज नॉट एनी प्लेस फॉर समवन सो गुड एज जॉन्सी टू लाई सिक. जॉन्सी के लिए ये बीमार पड़ने की जगह नहीं है. सम डे आई शैल पेंट माई मास्टर पीस. एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपना मास्टर पीस बनाऊंगा. एंड वी शैल ऑल गो अवे फ्रॉम हियर. गॉड, यस. और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे. कहते हैं हम तीनों, सू है, जॉन्सी है, मैं हूं, हम यहाँ पे आए हैं, इस इलाके में आए हैं अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए. और देखिए, सू एंड जॉन्सी तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन बहरमैन बातें ही कर रहा था. कहते एक दिन यहाँ पे मैं भी अपना मास्टरपीस बना लूंगा और फिर हम तीनों यहाँ से, अपना हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे. लेकिन जॉन्सी जो है वो क्यों बीमार पड़ गई? उसने जिंदगी की उम्मीद क्यों खो दी? जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप. जब वो दोनों ऊपर गए तो जॉन्सी उस वक्त सो रही थी. सू कवर्ड द विंडो. सू ने खिड़की को कवर कर दिया एंड टुक बहरमैन इनटू द अदर रूम. There they looked out the window fearfully at the tree. वहां से दोनों ने, बहरमैन और सू ने, बाहर दरख्त को देखा और वो खौफजदा हो गए. Then they looked at each other for a moment without speaking. बगैर बोले उन्होंने एक दूसरे को देखा. A cold rain was falling. बहुत सर्द किस्म की बारिश बरस रही थी. With a little snow in it too. और उसके दरमियान में बर्फ भी आ रही थी. Behrman sat down and Sue began to paint. बहरमैन खामोशी से बैठ गया और सू ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दी. शी वर्क थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट. ज्यादातर रात उसने इस पे काम किया. In the morning, after an hour's sleep, she went to Johnsy's bedside. Johnsy, with wide open eyes, was looking toward the window. I want to see, she told Sue. वो खिड़की की तरफ देख रही थी और उसने सू को कहा कि मैं बाहर देखना चाहती हूँ. यानी क्योंकि सू ने विंडो बंद की हुई थी तो वो कहती है मैं बाहर देखना चाहती हूँ. Sue took the cover from the window. सू ने कवर हटा दिया. But after the beating rain and the wild wind that had not stopped through the whole night, लेकिन इतनी शदीद बारिश और इतनी जंगली किस्म की तूफानी हवा चल रही थी, पूरी रात वो चलती रही. There still was one leaf to be seen against the wall. फिर भी एक पत्ता उस दीवार के साथ चिपका हुआ था. It was the last on the tree. और दरख्त का ये आखिरी पत्ता था. It was still dark green. और तो और इसका ग्रीन कलर था, बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर था नियर द ब्रांच. बट एट द एजेस इट वॉज टर्निंग येलो. सिर्फ कॉर्नर से ये जरा जरा येलो हो गया था. विद एज, जाहिर बात है अब इसकी एज भी ज्यादा हो गई थी क्योंकि पूरा ऑटम सीजन गुजर गया. विंटर में तो इट हैज टू फॉल. तो हल्का हल्का बस सिर्फ किनारों से ये येलो हुआ था. देयर इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच नियरली 20 feet अबव द ग्राउंड. ब्रांच से तकरीबन ये क्योंकि ज़मीन से ये जो शाख थी ये 20 feet ऊंची थी. ये वहाँ पत्ता ये वहाँ जुड़ा हुआ था. इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा ये तो आखिरी है. आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट. मैंने तो सोचा कि ये इस रात के दौरान ये तो गिर जाएगा. आई हर्ड द विंड, क्योंकि मुझे बहुत शदीद हवा की आवाज़ आ रही थी. इट विल फॉल टुडे. ये आज ज़रूर गिर जाएगा. एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम. और मैं भी उसी वक्त मर जाऊंगी. Dear, dear Johnsy, said Sue, think of me if you won't think of yourself. Sue कहती है अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो for God's sake मेरे ही बारे में सोच दो. What would I do? तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? But Johnsy did not answer. लेकिन Johnsy जवाब नहीं देती. The most lonely thing in the world is a soul when it is preparing to go on its far journey. वो कहती है कि दुनिया में सबसे अकेली चीज वो रूह होती है
when it is prepared, जो कि अपने दूर के सफ़र पे रवाना होने के लिए तैयार हो रही है. The ties that held her to friendship and to earth were breaking. फिर इस रूह के साथ जुड़े जितने रिश्ते होते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, चाहे कोई और हो, ये टूटना शुरू हो जाता है वन बाय वन, एक एक करके, क्योंकि अब सोल का ताल्लुक इस दुनिया से नहीं रहा. इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो फार बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. अब इस दुनिया से आगे जा रही है. The days slowly passed. आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरा. As it grew dark, they could still see the leaf hanging from its branch against the wall. जैसे जैसे रात आती गई, उन्होंने फिर देखा कि वो पत्ता फिर भी अपनी ब्रांच के साथ लटका हुआ है. And then as the night came, the north wind began again to blow. और फिर जब रात आई तो वो शुमाली हवा फिर दोबारा से चलना शुरू होगी. द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडोज. और इतनी तेज और स्लैंटिंग रेन थी कि वो खिड़की के पेन से टकरा रही थी. व्हेन इट वॉज लाइट इनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह कंप्लीट रोशनी होगी, जॉन्सी अगेन कमांडेड दैट शी बी अलाउड टू सी. जॉन्सी ने फिर उसको सू को कहा कि मुझे इजाज़त दो कि मैं बाहर देखूं. द लीफ वॉज स्टिल देयर. पत्ता अब भी वहां मौजूद था. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट. वो वहीं लेटी रही, बहुत देर उस पत्ते को देखती रही. एंड देन शी कॉल्ड टू सू हु वाज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट. फिर उसने सू को आवाज दी जो कि उसके लिए, उसके खाने के लिए कुछ पका रही थी. आई हैव बीन अ बैड गर्ल सू, सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा, मैं कितनी बुरी लड़की रही हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ कि मैं क्या सोचती रही. समथिंग हैज मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वॉज. कोई ऐसा है जिसने इस पत्ते को नहीं गिराया सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए. हाउ बैड आई वॉज, कि मैं कितनी बुरी हूं. इट इज रॉन्ग टू वॉन्ट टू डाई. मरने का आइडिया जो है, ख्याल या तसव्वुर जो है, वो कितना गलत है. आई विल ट्राई टू ईट नाउ. अब मैं खाने की कोशिश करूंगी. बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास. मुझे मिरर ला के दो सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ. अब उसमें दोबारा उसको अपनी गलती का एहसास हो गया. इस पैराग्राफ में वी आर टोल्ड दैट जॉन्सी हैज कम टू रियलाइज. उसने अब उसको एहसास हो चुका कि वो कितना गलत सोच रही थी. ये पता उसको एक लेसन दे रहा था कि इट इज़ वेरी मच रॉन्ग टू थिंक टू डाई ओनली, टू थिंक अबाउट डेथ. कि मौत के बारे में सोचना, जब अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी, आपको चांसेस दिए, और आप फिर भी डार्क साइड की तरफ सोच रहे हैं, आप फिर भी डेथ के बारे में सोच रहे हैं. यू आर सच अ थैंकलेस पर्सन. बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुक. अब उस पर उम्मीद जागी. उसने कहा, मुझे मिरर ला के दो सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ. मैं अपने आप को देखूं. एंड देन आई सिट अप एंड वॉच यू कुक. मैं उठ के बैठूंगी अब. यानी उसने कहा कि अब मैं जिंदगी की तरफ आ रही हूं, मैं उठ के बैठूंगी. एंड वॉच यू कुक, और मैं तुम्हें पकाते हुए देखूंगी. यानी वो आहिस्ता आहिस्ता अब जिंदगी की तरफ आ रही थी. उसे अपने गलती का एहसास हो चुका था. An hour later, she said, Sue, someday I hope to paint the Bay of Naples. और अब दोबारा वो कहती है, उसमें एक उम्मीद जाग गई. उसने कहा कि एक दिन आएगा कि मैं बे ऑफ नेपल्स को भी पेंट करूंगी. उसमें अब उम्मीद की किरण जाग गई. Now the hope has revived in her. तो वो कहती है कि बे ऑफ नेपल्स में जाऊंगी, इटली जाऊंगी. इट इज इन इटली. इट इज एन आर्म ऑफ टिरेनियन सी एट नेपल्स, इटली. तो बे क्या होता है? ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी, कर्व्ड वेयर द लैंड कर्व्स ना. यानी एक समंदर होता है जहां पे लैंड का एक कर्व बना होता है, उसके अंदर वो, इट इज कॉल्ड बे. Now, the doctor came in the afternoon. Sue followed him into the hall outside Jonesy's room to talk to him. Doctor उस रात उस दोपहर आया. Sue followed him into the hall outside Jonesy's room. Sue उसके पीछे गई. The chances are good, said the doctor. डॉक्टर ने कहा उसके तो बचने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. He took Sue's thin shaking hand in his. क्योंकि उसने सू का पतला और कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया. Give her good care and she'll get well. वो उसका ख्याल रखो, अच्छे तरीके से उसकी केयर करो और वो ठीक हो जाएगी. एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस. और अब इस बिल्डिंग में एक और बीमार शख्स है, मुझे उसको भी देखना है. हिज नेम इज बेहरमैन. उसका नाम बेहरमैन है. अ पेंटर आई बिलीव. मुझे यकीन है कि वो पेंटर है. निमोनिया टू, उसको भी निमोनिया है. माइक इज एन ओल्ड वीक मैन एंड ही इज वेरी इल.
वो बहुत बूढ़ा आदमी है और बहुत ज्यादा बीमार है. देयर इज नो होप फॉर हिम. उसके लिए तो अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची. बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे. हम आज उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे. वी विल मेक इट एज इजी फॉर हिम एज वी कैन. और हम उसके लिए कुछ आसानी करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सका. द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू. अगले दिन डॉक्टर ने सू को बताया, शी इज सेफ, यू हैव डन इट, फूड एंड केयर नाउ, दैट्स ऑल. अब वो उसकी दोस्त जॉन्जी अब महफूज है और उसने उसको अप्रिशिएट किया कि तुमने उसका बहुत ख्याल रखा है. अब उसकी खुराक का ख्याल रखो और बस दैट्स ऑल. अब उसकी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी हैं. शी इज़ गेटिंग बेटर. अब उसको अच्छी डाइट की ज़रूरत है. एंड दैट आफ्टरनून सू केम टू द बेड वेयर जॉन्जी ले. और उस दोपहर सू आई उस बेड के पास जहाँ जॉन्जी लेटी हुई थी. शी पुट वन आर्म अराउंड हर. उसने उसको बाजू में लिया. आई हैव समथिंग टू टेल यू, शी सेड. उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ. मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल. मिस्टर बहरमैन आज निमोनिया से हॉस्पिटल में मर गया है. ही वॉज इल ओनली 2 days. सिर्फ 2 दिन ही वो जिंदा रहा. समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हिज रूम. कोई बंदा उसके कमरे में गया और उसको वहां पे पाया. ही वॉज हेल्पलेस विथ पेन, जहां उसको बहुत ज्यादा दर्द था. हिज शूज एंड हिज क्लॉथ्स वर वेट एंड एज कोल्ड एज आइस. और उसी सुबह जब किसी बंदे ने उसे देखा तो वो हैरान हो गया कि उसके जूते इतने ठंडे क्यों हैं. उसके कपड़े इतने ज्यादा गीले और ठंडे थे, इतने ठंडे थे जैसे बर्फ है. Everyone wondered where he had been. और सब हैरान थे कि क्यों वो इतना ठंडा पड़ा हुआ. उसके कपड़े बिल्कुल आइस की तरह हुए हुए थे. उसके शूज अकड़े हुए थे बर्फ की तरह, इतने ठंडे थे. तो सब हैरान हुए कि वो पूरी रात कहाँ था. द नाइट हैड बीन सो कोल्ड एंड वाइट. क्योंकि वो रात तो इतनी ठंडी और इतनी अजीब किस्म की तूफानी रात थी. तो वो कहाँ था कि वो इतना ज्यादा उसको सर्दी लग गई. एंड देन दे फाउंड समथिंग. और फिर लोगों को पता चल गया. देयर वाज अ लाइट दैट ही हैड टेकन आउटसाइड. एक लाइट थी जो वो अपने साथ बाहर लेके गया था. एंड देयर वर इज मटेरियल्स फॉर पेंटिंग. और वहां पे कुछ पेंटिंग की चीजें वहां पे लोगों को मिली. देयर वॉज पेंट, ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट. एंड और उसने कहा कि पेंट के कलर्स क्या थे. ग्रीन पेंट और येलो पेंट था वहां पे. ये क्या इंडिकेट करता है कि एंड देन शी सेज, लुक आउट द विंडो डियर एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल. अब देखो बाहर, खिड़की से बाहर, वो जो आखिरी पत्ता है दीवार के ऊपर, उसको देखो. डिडंट यू वंडर व्हाई इट नेवर मूव्ड व्हेन द विंड वाज ब्लोइंग. तुम्हें हैरानी नहीं हुई, तुम्हें हैरत नहीं हुई कि इतनी ज्यादा हवाओं में भी ये कभी भी हिला भी नहीं है. ये पत्ता अपनी जगह पे स्टिक है. ओ माई डियर, इट इज बहरमैन्स ग्रेट मास्टरपीस. ये बहरमैन का बेहतरीन मास्टरपीस पेंटिंग है. He painted it there the night that the last leaf fell. इसने वहाँ ये पेंट किया था उस रात जब आखिरी पत्ता गिर चुका था. उसने फौरन ये पत्ता पेंट कर दिया ताकि सुबह जब तुम उठ के अपनी विंडो खोलो तो तुम ये ना सोचो कि पत्ता गिर गया और अब तुम भी मरने वाली हो. ताकि वो पत्ता तुम्हें अपनी जगह पे कायम नजर आए और जिंदगी की उम्मीद तुम्हारे अंदर वापस पैदा हो. वो चिल विंड और बारिश में बैठ के उसने ये पत्ता वहां पे पेंट कर दिया और ग्रीन पेंट किया. ग्रीन इज द होप ऑफ लाइफ एंड रिवाइवल. तो ये लास्ट लीफ जो है, तुम्हें कभी हैरत नहीं हुई कि हवा के साथ हिल भी क्यों नहीं रहा ये पत्ता. ये बिल्कुल अपनी जगह पे स्टिक क्यों है. तो ये बहरमैन का मास्टरपीस है. उसने तुम्हारी खातिर उस सर्दी की रात जब उसने देखा कि आखिरी पत्ता गिर गया है और वो फौरन गया और उसने, आपको डियर व्यूअर्स, आपको ये याद है कि पीछे हमने एक लाइन में पढ़ा था कि दोनों ने विंडो से बाहर देखा एंड दे वर शॉक्ड टू सी कि इतनी सर्द हवा चल रही है. उसी वक्त वो पत्ता गिर गया था. और जब सू ने बहरमैन की पेंटिंग बनाई तो फिर बहरमैन फौरन चला गया. कहीं वो गया और उसने अपनी पेंटिंग्स उठाई और बाहर निकल गया. उस सर्दी की सर्द रात वो बैठ के उसने वो लास्ट लीफ पेंट किया वहां पे ताकि अगर जॉन्जी वहां देखे तो उसे वहीं पे नजर आए और जिंदगी की उम्मीद उसके लिए वापस आ जाए. और खुद उसको इतनी सर्द रात में, चूंकि वो बहुत बूढ़ा भी था, उसकी एज भी इतनी नहीं थी, वो वैसे ही वीक था, उसको इतनी ज्यादा ठंड लग गई कि उसे निमोनिया हो गया और उसके बचने के चांसेस ना रहे. 2 दिन के अंदर उसकी डेथ भी हो गई. सो ही सैक्रिफाइस्ड हिज ओन लाइफ फॉर द सेक ऑफ जॉन्जीज लाइफ. This was the whole story about the last leaf. Last leaf is very significant. The whole story revolves around this last leaf.
Coming to the questions of this chapter, what is the main theme of the story, The Last Leaf? And I have written an answer for you. I hope it is an organized one. It will be helpful for you. Attitude is everything. यानी थीम हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है ना, इट इज़ एवरीथिंग फॉर बेटर और वर्स. हमारी ज़िंदगी में जो अच्छाई होती है हमारे साथ या बुराई होती है, वो हमारे अपने एटीट्यूड की वजह से होती है. द वे यू परसीव एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड हैज़ अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द रिजल्ट्स यू ऑब्टेन. जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, उसकी वजाहत करते हैं, इट हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन योर माइंड. फिर उसके जो रिजल्ट होता है ना, वही आपको मिलता भी है. A negative attitude is almost a guarantee that life will be more difficult. अगर आप नेगेटिवली हर चीज को देखते हैं तो जिंदगी आपके लिए बहुत मुश्किल है एंड लेस फुलफिलिंग, लेस सक्सेसफुल है आपके लिए देन इट शुड बी. सो फर्दर अ पेसिमिस्टिक आउटलुक विल एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ. ये जो पेसिमिस्टिक आउटलुक है, आपका जो नेगेटिव थिंकिंग है या आपका नजरिया जो है, ये आपकी सेहत पे असर डालता है, आपकी रिलेशनशिप्स पे असर डालता है एंड इट अफेक्ट्स योर प्रोफेशनल ग्रोथ एज वेल. लाइफ इज नेवर इजी एज वी हैव अवर अप्स एंड डाउन्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे पॉजिटिव. जिंदगी कभी भी आसान नहीं है, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, नशेबो फराज आते रहते हैं. लेकिन असल चीज ये है, अहमियत किस बात की है कि आप पॉजिटिव रहें. सेकेंडली, वी आर नॉट ओनली हैप्पी व्हेन वी लिव फॉर आवरसेल्व्स ओनली. एक और चीज भी हमें इस बात का सबक मिलता है कि अगर हम सिर्फ अपने लिए जिंदा रहते हैं तो हम कभी खुश नहीं रहते. द पीपल इन द वर्ल्ड हु अचीव्ड द मोस्ट आर द वंस हु आर एबल टू सेक्रीफाइस. दुनिया में लोग जिन्होंने कुछ हासिल किया है, कुछ अचीव किया है, कामयाब हुए, वो वही लोग हैं जो कि कुर्बानी देना जानते हैं. एज इन द स्टोरी मिस्टर बहरमैन सेव्स द लाइफ ऑफ जॉन्जी. इस स्टोरी में मिस्टर बहरमैन जो है वो जॉन्जी की जिंदगी बचाता है बाय सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ, अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके. बट ही हिमसेल्फ हैज अचीव्ड हिज एम बाय मेकिंग द बेस्ट पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ. लेकिन उसने सेक्रीफाइस तो किया, लेकिन उसकी सारी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी होगी एट द एंड जब उसने बेहतरीन पेंटिंग बनाई द लास्ट लीफ की. सेक्रीफाइसेस फॉर द नोबल कॉज नेवर गो अनरिवॉर्डेड. अगर आप किसी नेक मकसद के लिए कुर्बानी देते हैं तो वो कभी अनरिवॉर्डेड नहीं जाती, उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड सू एंड जॉन्जी बिकम फ्रेंड्स. सू और जॉन्जी कैसे दोस्त बने. सू एंड जॉन्जी लिव्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विद 3 फ्लोर्स. They had met at a restaurant on 8th Street. हमने अभी स्टोरी में पढ़ा. There they got the opportunity to know each other. They discovered that they liked the same kind of art, the same kind of food and the same kind of clothes. उनकी choices, likes, dislikes एक ही थी. They had a compatibility. They had almost the same choices and compatibility. Therefore, they decided to live and work together. They became friends और उन्होंने फैसला किया कि वो इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे ही काम करेंगे. Question number 3 is she has a chance if she wants to live. If people don't want to live, I can't do much for them. What do these words of the doctor about Johnsy mean? Johnsy के ये जो अल्फाज थे उनका क्या मतलब था? According to the doctor, Johnsy's condition was worrisome. जॉन्सी की जो इस वक्त हालत है वो परेशान कुन है बिकॉज शी डिडंट शो एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट. उसमें तो इम्प्रूवमेंट की, बेहतरी की कोई आसार नजर नहीं आ रहे डिस्पाइट गुड ट्रीटमेंट. हालांकि डॉक्टर तो इतनी अच्छी ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से इलाज कर रहा है. ही थॉट परहैप्स ही हैड लॉस्ट हर विल टू लिव. डॉक्टर ने सोचा कि उसके अंदर ही विल पावर लूज कर चुकी है जिंदा रहने की. एंड नो मेडिसिन कुड हेल्प हर इन दिस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड. अगर उसका जहन ही मनफी सोचने लगा है तो अब कोई भी मेडिसिन उसका इलाज नहीं कर सकती. द डॉक्टर सेड इफ शी हरसेल्फ डिड नॉट वांट टू लिव देन मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर. अगर वो खुद जिंदा नहीं रहना चाहती तो दवाइयां उस पर असर नहीं करेंगी. हर विलिंगनेस एंड विल पावर टू लिव कुड ओनली क्योर हर. उसकी अपनी जो कुव्वत इरादी है, उसकी अपनी जो विलिंगनेस है, ईगरनेस है जिंदा रहने के लिए ही, वही सिर्फ उसके इलाज कर सकती है. इट इज पेशेंट्स विल पावर टू लिव दैट पुल हिम थ्रू. ये हमेशा मरीज की कुव्वत इरादी होती है जो उसको उस चीज से बाहर निकालती है.
Question number 4 is, why did Johnsy keep asking the Sue to open the curtains? Johnsy क्यों बार बार सू को कहती है कि वो पर्दे को खोल के रखे, खिड़की खोल के रखे? She was suffering from pneumonia and she had lost all hopes to survive. क्योंकि उसे निमोनिया हो गया था, उसने तमाम उम्मीदें छोड़ दी थी जिंदा रहने की. She had made up her mind that she would not survive till long. उसने अपना जहन बना लिया था कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी. Lying on her bed, she looked out of her window. अपने बिस्तर पे लेट के वो खिड़की से बाहर देखती रहती. Lying on her bed, she looked out of the window. There was only the side wall of the next house and the old tree grew against the wall. Almost all the leaves had fallen from its dark branches. Johnsy kept on looking at the tree and counting the last 6 leaves. अब 6 आखिरी पत्ते रह गए थे, वो उनको गिन रही थी. She was convinced that when the last leaf fell, she would die too. Therefore, she kept asking Sue to keep the window open to see when the last leaf would fall. कि उसने सू को कहा कि वो खिड़की खोले रखे ताकि उसे पता चले कि आखिरी पत्ता कब गिरेगा, और साथ में उसकी वो चाहती है कि वो आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखे, साथ ही उसकी जिंदगी खत्म होते हुए देखे. Question number 7. Short character sketch of Mr. Behrman. Behrman is a 60 years old painter. He lived on the ground floor of the house where Sue and Johnsy lived. He had a lifelong dream to paint a masterpiece. Sue told him about the condition of Johnsy, that she thought she would die with the fall of the last leaf. Behrman thought of a plan to save Johnsy. He went out in the rainy and stormy night and painted the picture of the leaf on the ivy. To see the leaf, Johnsy got back her will to live, but Behrman died of pneumonia because he had been out all night in the cold. Thus Behrman made a supreme sacrifice of giving up his life for the sake of another person. He was a great man who saved the life of Johnsy by sacrificing his own life. Question number 8 is, describe the plot of this short story in your own words. The Last Leaf is a short story by O. Henry. It was published in 1907 in his collection The Trimmed Lamp and Other Stories. The Last Leaf is a story of Johnsy, a poor young woman who is critically ill due to pneumonia. She believes that when the ivy vine on the wall outside her window would lose all its leaves, she would die too. However, her neighbor Behrman, an artist, tricks her by painting a leaf on the wall. Johnsy recovers. However, Behrman caught pneumonia while painting the leaf. As a result, he dies. This is the plot of the story. Question number 9. What lesson do we get from the story The Last Leaf? हमें क्या सबक मिलता है? आप उसके लिए उसमें जो थीम है वो भी आप लिख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, what is the theme of the story? So this story teaches us a lesson that we should have positive attitude towards life so that we can make our life as fruitful as possible. अगर हम जिंदगी में मस्बत सोचेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, तो हम अपनी जिंदगी को बहुत कारामद बना सकते हैं. People with negative attitude towards life lose all interests in the world. लोग जो कि जिनकी मनफी सोच होती है वो जिंदगी में सारी दिलचस्पियां खो देते हैं and become totally paralyzed both mentally and physically. वो फिर इस काबिल नहीं होते कि जहनी तौर पे वो अच्छा सोच सकें, फिजिकली भी वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं. एज दे थिंक दे आर गुड फॉर नथिंग इन द केस ऑफ जॉन्जी, एज इन द केस ऑफ जॉन्जी, क्योंकि वो कहते हैं अब वो किसी काबिल नहीं रहे. जैसा कि जॉन्जी के केस में हुआ, शी थिंक्स दैट हर लाइफ वाज लिंक्ड टू द लीव्स ऑन द आइवी क्रीपर. वो अपनी जिंदगी को उन पत्तों से अटैच कर लेती है जो वहां पे बाकी बचे हुए होते हैं. Such type of people create problems for others around them too. इस तरह के लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी मसाइल बना देते हैं. Had Johnsy adopted a positive attitude, अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता, वो अच्छा सोचती, जिंदगी के बारे में सोचती instead of thinking about death, तो Behrman would not have died. Behrman कभी भी ना मरता. Therefore, we should utilize each and appreciate every moment in life and live life positively and meaningfully. हमें चाहिए कि हम जिंदगी के हर लम्हे को अप्रिशिएट करें और अपनी ज़िंदगी को बहुत मुस्बत अंदाज से गुजारें और बेहतरीन हम मीनिंगफुली गुजारें, बामानी ज़िंदगी गुजारें. क्वेश्चन नंबर 10 इज सजेस्ट एन अल्टरनेट एंडिंग फॉर द लास्ट लीव. लास्ट लीव के लिए आप कहते कि इसमें तो स्टोरी में ये हुआ कि वो एंड पे पेंटर जो था वो खुद मर गया, उसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी. आप होते तो आप कौन सी कोई अल्टरनेट एंडिंग सजेस्ट करें इसके लिए. So Behrman braves the rain for painting a leaf on the wall which looks so realistic that Johnsy falls prey to the deception. Behrman जो है वो एक बहुत खूबसूरत पत्ता बनाता है, उसको पेंट करता है बारिश में,
जो इतना हकीकत पसंद, हकीकी नज़र आता है, इतना रियल नज़र आता है कि जॉन्जी जो है वो उसको वो धोखे में आ जाती है कि ये असल पता है. दो बहरमैन हैज़ एन अटैक ऑफ निमोनिया, बहरमैन को निमोनिया का अटैक हो जाता है. डॉक्टर्स आर एबल टू सेव हिम, डॉक्टर जो है वो डॉक्टर्स आर अनएबल टू सेव हिम, सॉरी यहाँ पे अनएबल होना चाहिए, डॉक्टर जो है उसको बचाने के काबिल नहीं है. एंड ही बिकम्स वेरी फेमस फॉर द लीफ ही पेंटेड, और उस पेंटिंग के लिए जो पत्ता वो बनाते हैं उसके लिए वो बहुत मशहूर हो जाता है, बिकॉज इट इज़ हिज मास्टर पीस. His dream of painting a masterpiece is fulfilled. और इस तरह उसका ख्वाब एक मास्टरपीस बनाने का वो कामयाब हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है. Now it's grammar portion, that is phonetic transcriptions हैं, ठीक है. That is a bike. Now see, after B there is a sign of this sign. It is the sign, it is pronounced as a. It is bike. Then bus. Again that sign is a. That is bus. Car. CA and A after A. You have to lengthen this sound. A. Car. Tire. Tire. Ticket. TIKIT. Ticket. Truck. TR and again sign of A, truck. Speed, SPI, and after I there are two dots, we have to pronounce it as E, speed. Patrol, patrol, REL, patrol. Road, OA, road. It is road. Then it is garage. Now see, after A there are two dots, so we have to, इस sound को हमने थोड़ा सा लंबा करना है. Garage. D and Z always gives the sound of J. It is garage. Coming to which syllable is to stress in the following words? Beautiful. Now stretch syllables, जिसमें हमारे throat पे stress आता है. Beau. Now see, you stress this. Beautiful. Beau. So first is to be. अब इसकी आप phonetic transcription देखेंगे. U. J is always pronounced as U. Beau. And after U there are two dots. आपने उसको लंबा करना है. जब आप उसको साउंड को लंबा करते हैं तो डेफिनेटली इट पुट स्ट्रेस, it needs stress here. Beautiful. Then between, B, between. There are two syllables in B and tween. Now see the second syllable tween. अब आप TWI के बाद two dots हैं, आपने इसको E pronounce करना है. B and tween. So tween is stressed here, second syllable. Then management. Man, age and meant. First syllable man, क्योंकि A को हमने थोड़ा long करना है. Management. Campaign, pain. Second syllable pain, EIA. Financial, nan. Now nan, आपने उसको लंबा किया. Finan, stress किस पे आया? nan पे. Financial. Candidate, candidate. First syllable is to be stressed. Certainly, certainly. Now you always place stress on sir, certainly. Material, material. T is to be prolonged. Material. So there are four syllables. Material. Second syllable is to be stressed. Material. Then comes newspaper. News. Now primary syllable stress is also on news. Sometimes we stress on news, sometimes newspaper. Pay, secondary syllable stress. So there are two syllables to be stressed. News, paper. Then character. Character. So care is to be stressed here. So it is stressed syllable. First syllable is stressed. Now root words here. There is an exercise of the root words. Mountain. It comes with mount. Mount. Rescued, from rescue.
Naturalist from natural. Stormy from storm. Loner from lone. Kindness from kind. Answered from answer. Root words जो हैं यानी basic words क्या हैं? Respectful from respect. Completed from complete. Misspell from spell. Migration from migrate. Actor from act. Champion from champ. Nervous from nerve. Servant from serve. These are the root words, and mountain from mount. It must be mount here. Now parts of speech. Parts of speech. In that house lived. So we have to identify nouns, verbs, adverbs, adjectives and prepositions. In that house lived two men. House is a noun. Lived is a verb. Two is an adjective and men is noun. Look, an aged woman came by. Look is a verb. An aged. Aged is adjective. Woman is noun. Came is verb. The color of this cap is quite different from that one. Color is adjective. Cap is noun. Quite different. Quite different is adjective. Now from is preposition. Now I saw in my dream that he spoke many good words. I is pronoun. Saw is verb. Dream is noun. Spoke is verb. Good words, many good adjectives. Words are noun. The most cruel dog was there about. The most cruel is adjective. Dog is noun. We must clear up this misunderstanding between us. Between. We must clear up. Clear up is verb. Misunderstanding is noun. Between is preposition. It was a fine jacket, green and clean. Now jacket is noun and there are three adjectives, fine, green and clean. Nowadays people usually talk about the dearness when they meet in the street. People noun, talk verb. About the dearness is adverb. When they meet in the street, this is adverb phrase. I saw in my dream that my father spoke many good words. I saw in my dream. My dream is a noun. Father is a noun. Father spoke. Spoke is verb. What did he speak? Many good words. Many good words is an adverb. Now in number 4 you must see that he spoke many good words. Spoke what? Many good words. It is adverb. Then in number 10, in the current circumstances, I think it is very kind of you to help me with the problem. Current is adjective, circumstances noun, think is a verb, kind of you adjective, help is a verb, with the problem, with is preposition, problem to help me with the problem. Jack covered, help me, with the problem is adverb. Jack covered his small nose in sunblock. Covered is a verb. What did he cover? His small nose is an adverb. I threw the round frisbee as far as I could. Threw is a verb. What did he throw? The round frisbee is adverb. My family rent a beach house for a summer vacation. Family is noun. Rented is verb. What did they rent? A beach house. अगर आप देखें, it is an adverb as well. Summer is adjective, vacation noun. The beautiful sunset added the perfect touch to our summer afternoon. Beautiful is adjective, sunset is noun. Added is verb, the perfect touch is adverb. Beach volleyball is very popular during the summer. Beach is adjective, volleyball is noun, very popular during is preposition. Now again, which part of speech? Now see, which part of speech are the underlined words in the following sentences? Now see, she thought of a wise plan. She thought of a wise plan. Thought is a verb. Underlined word is thought. It is verb. I want to go now. Now is adverb. Where do you want to go? Because it describes the verb, that is go. Where are you going? You is pronoun. The sun gives us heat and light. Gives is a verb. Alina is my best friend. Best is adjective. The pen was expensive. Still I bought it. Bought is a verb. That was a lovely evening. Lovely is adjective, which it describes the noun, that is evening. My father works in
in a factory. Factory is a noun. She must be a stupid. Stupid is adjective. The cat is under the bed. Under is preposition. Jasmines are white in color. White is adjective. Do it quickly. Quickly is adverb. He went to the market to buy some vegetables. To is preposition. I help him because he is poor. Because is conjunction. Because it is a joining word. It is my handkerchief. It is a pronoun. I hope the things are clear to you. If there is any confusion, you may ask me in your comments. I'll be there inshallah to solve your problems. I hope you have liked my video. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.